हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, द थ्री ऑर्डर। दैट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th हिस्ट्री हियर, and their next question arrive here, discuss the detail about the emergence of cathedral. That's important. There is a emergence of cathedrals here. You know that from 12th century, a large churches were built in France. 12th century is the most important time period here. The build of large amount of churches in this time, and they were not the cathedral. Is they belong to the monasteries. The cathedrals is belong to be monasteries, and the various group of people contribute a lot to be their construction in from the labor to the materials and money. Know that is important. The various group of people contribute a lot to there is here labor, materials and money here, because construction of there. And along with it is a rich of merchants also spend money by the making donation to the churches, and cathedrals took many years in their completions here. You know that's important. The cathedrals here, and after their completions, there is a become the center of pilgrim image is a small town also grew a lot. The specialty of the design of cathedrals was their voice of priest, and could be clearly heard within the hall where a number of people gathered, and their voice could be heard even from a far off distance. Their voice could be heard even for a far off distance here. For the window stained glass was used. That's important. For the window stained glass was used on this time. During the day, the sunlight would make them to the radiant from people inside the cathedrals, and after sunset, the light candles would make them to the visible to the people outside. Know that during the day, the sunlight would make them to radiant from people inside the cathedral, and after the sunset, the light candles would make them to the visible to people to the outside. That's an important point here. The stained glass windows narrated their story in the Bibles through their picture, and which even the literate people could be read. That's an important point here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीन वर्ग जो है क्लास 11th हिस्ट्री के अंतर्गत है, सीबीएसई एनसीईआरटी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आया है, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा। आज अगला क्वेश्चन जो है गिरजाघरों के उद्भव के बारे में
आपने बताना है कि गिरजाघरों का उदय कैसे हुआ और कैसे इसका विस्तार हुआ, कैसे बनाया गया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, जो गिरजाघरों को कैसे बनाया गया, कैसा इसके उद्भव हुआ, कैसे इसका विकास हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न उठता है। देखा जाए तो गिरजाघर के उद्भव के बारे में हम विस्तार पर हम चर्चा करें तो कहते हैं 12वीं शताब्दी से फ्रांस में बड़े बड़े चर्च बनाए गए थे। 12वीं शताब्दी देखा जाए तो चर्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो है फ्रांस में बड़े बड़े चर्च का जो है निर्माण करवाया गया और एक कैथलर के नाम से जाना लगा। और ये मठ के थे, यानी इन्हें कैथेड्रल्स के नाम से जाना जाता था और ये मठों के थे। लोगों के विभिन्न समूह ने श्रम, सामग्री और धन के रूप में उनके निर्माण में बहुत योगदान दिया। यानी देखा जाए तो गिरजाघरों के निर्माण के लिए आम लोगों की यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि आम लोगों के दान से ही गिरजाघरों को बनाया गया और इसमें लोग जो है श्रम, सामग्री, धन के रूप में उनके निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो साथ ही अमीर व्यापारी चर्चों के दान देकर भी पैसा खर्च करते थे, यानी इनके साथ ही अमीर व्यापारी भी चर्चों को दान देकर भी जो है पैसा खर्च किया करते थे। और कैथेड्रल को पूरा होने में कई साल लग गए। जो कैथेड्रल है उसको होने में, बनने में, जो गिरजाघर है बनने में देखा जाए तो कई साल लग गए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें जो है अमीर व्यापारी चर्च को दान देकर पैसा खर्च किया करते थे इन गिरजाघरों के बनाने के लिए, तो ये महत्व रखता है। इसके पूरा होने पर ये तीर्थ स्थल बन गए और छोटे छोटे शहर का खूब विकास हुआ। अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मैंने देखा है, जाना है, जितने भी कहते हैं संसार में महापुरुष आए उन्होंने तीर्थ यात्राओं को जो है खंडन किया, लेकिन बाद में उन्हीं का ही तीर्थ यात्रा बना दिया गया। तो ये तो आम बात है। तो यहाँ पर उनके पूरे होने पर जो है लोग जो गिरजाघर बनाए गए उनको तीर्थ स्थल बना लिए और छोटे छोटे शहर का जो है विकास। अब जनरल सी बात है, जहाँ पर तीर्थ स्थल होगा उन शहरों का विकास होगा। कारण क्या होता है कि वहाँ पर देखने के लिए, जानने के लिए बहुत से लोग जाते हैं और वहाँ पर अच्छा खासा व्यापार हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ देखा जाए तो गिरजाघरों के निर्माण के कारण ही यहाँ पर तीर्थ स्थल बनाए गए और इससे जो है शहरों का विकास होना सुनिश्चित किया। गिरजाघरों के डिजाइन की खासियत यह थी कि हॉल के भीतर जहाँ कई लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पुजारी की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। यानी देखा जाए तो गिरजाघर के बनाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। गिरजाघर के डिज़ाइन की खासियत यही थी कि हॉल के भीतर जहाँ कई लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पुजारी की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दी जाती थी। इसकी आवाज़ दूर से भी सुनी जा सकती थी, यानी ऐसे उसको डिज़ाइन किया गया था। इवन देखा जाए तो खिड़की के लिए रंगीन शीशे का भी प्रयोग किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, खिड़कियों के लिए रंगीन शीशों का उपयोग किया गया था। इसकी आवाज़ जो है दूर तक भी सुनी जाती थी और जो कैथोलिक के होते थे फादरी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उनका आवाज़ जो है दूर दूर तक जो है उनकी सुना जा सकता था। जो पुजारी थे उनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। देखा जाए तो खिड़कियों में रंगीन शीशे का भी प्रयोग हुआ था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते दिन के दौरान सूरज की रोशनी उन्हें गिरजाघरों के अंदर के लोगों के लिए उज्ज्वल बनाती थी। यानी ऐसे निर्माण किया गया था कि सूरज की रोशनी गिरजाघरों में अंदर तक जा सके और गिरजाघर को उज्ज्वल कर सके और सूर्यास्त के बाद हल्की मोमबत्ती उन्हें बाहर के लोगों को दिखाई देती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डिज़ाइन करने की पद्धति थी। इवन देखा जाए तो रंगीन कांच की खिड़कियाँ बाइबल की कहानी को चित्रों के माध्यम से बताती थी, जिन्हें अनपढ़ लोग भी पढ़ सकते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिला कि रंगीन कांच की खिड़कियाँ बाइबल की कहानियों को चित्रित थी, यानी वहाँ चित्रों से प्रकट थी और चित्रों को समझना अनपढ़ के लिए भी आसान होता है। इसलिए इसमें खासियत थी कि रंगीन कांचों पर जो है बाइबल की कहानियों को जो है अंकित किया गया, जिसको कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत ही आसानी से उसको जो है समझ सके। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ गिरजाघरों की खासियत थी और इन गिरजाघरों के बनाने में सभी लोगों ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सब ने धन भी दिया, मटेरियल भी दिया और अपना श्रम भी दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन्हीं कारणों से जो है गिरजाघरों को जो निर्माण करवाया गया और बाद में यही गिरजाघर जो है तीर्थ स्थल के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण यहाँ पर जो है छोटे शहर जो है का विकास हुआ, काफ़ी विकसित हुआ
और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बना। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टेशन के साथ। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है, अगर और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो जनरल सी बात है, आप त्रिपाण स्टेशन की मदद कर सकती हो। और मदद करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही केयर होता है। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और बस से लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आने वाले समय में आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8 से लेकर एम तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।